So, good evening everyone. We will continue our discussion on the topic thermodynamics. In the previous class, we were talking about thermodynamic equilibrium. Now, thermodynamic equilibrium is what? When all the Recording in progress. This thermodynamic equilibrium is possible when all the thermodynamic functions or thermodynamic properties, or what we can say the thermोडायनामिक प्रॉपर्टीज यानी कौन कौन सी बेटा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, और दैट इज थर्मोडायनामिक फंक्शंस. कल हमने थर्मोडायनामिक फंक्शंस पढ़े थे, है ना, स्टेट फंक्शन पढ़े थे, पाथ फंक्शन पढ़े थे. व्हेन थर्मोडायनामिक फंक्शंस रिमेन्स unchanged, remains constant throughout, remains constant throughout. So this is what the thermodynamic equilibrium. As I told you yesterday, it is a hypothetical form phenomena. Hypothetical means imaginary, which cannot be realized in actual practice. So thermodynamic equilibrium, a system is known to be in thermodynamic equilibrium when its thermodynamic properties, that is thermodynamic functions. मैं बात कर रहा था thermodynamic functions यानी temperature, pressure, volume, है ना, chemical composition. These are the thermodynamic function which remains constant throughout. There will be no change during the process or in initial or final state. So this is the definition for thermodynamic equilibrium. It exists only when following three equilibrium exist simultaneously. It will exist simultaneously. हाँ जी. When this following three equilibrium exist simultaneously, कौन कौन से equilibrium है? एक तो पहले है thermal equilibrium, means no change in temperature. No change in temperature. Thermal equilibrium. Second, chemical equilibrium. कल हमने इसको composition भी लिखा था, one and the same. Chemical equilibrium means no change in chemical composition. तो केमिकल कंपोजिशन भी उसका चेंज नहीं होना चाहिए थ्रू आउट. एंड थर्ड इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? कल इसे भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? देयर शुड नॉट बी एनी प्रेशर ऑन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम. Internally and externally there should not be any change of pressure, है ना. There should not be any change of pressure internally and externally within the system or outside the system. No change in pressure. No change in pressure within the system or outside the system, or outside the system. So no change in pressure, no change in temperature, no change in chemical composition. When all these three exist simultaneously, then only we get thermodynamic equilibrium. And this is something
वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कोई भी प्रोसेस, कोई भी सिस्टम अगर अपना स्टेट चेंज करता है ना, कि ये स्टेट ए है, स्टेट ए स्टेट बी में जब वो चेंज होगा तो उसका कुछ तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कहीं तो कुछ ना कुछ चेंज आने ही वाला है। अगर ये चेंज नहीं आया तो सिस्टम कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा। जैसा हम देखते हैं ना कि अब एक बलून है, तो बलून क्या अपने आप हमको दिखता है ऊपर जाता है, लेकिन कब, जब उसमें आप हाइड्रोजन या एयर आप फिल करते हैं तब वो बलून ऊपर जाता है। बिना उसको फुलाए हुए बलून अपने आप ऊपर चला जाएगा क्या? नहीं जाता है। तो जैसे कोई भी प्रोसेस हो रही है, स्टेट ए को स्टेट बी में चेंज करना है। आप अपने घर में बैठे हैं और वहां से आपको धर्मपेट आने का है, अभ्यंकर नगर आने का है, क्लासरूम में आना है, तो अपने आप आ जाएंगे क्या? बिना किसी चेंज के कुछ तो चेंज होगा ना, टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तीनों एक साथ हो सकते हैं या सिर्फ एक फैक्टर को चेंज करो और स्टेट बदल जाएगा। जैसे हम स्टेट को चेंज करना है तो H2O लिक्विड लिया और इसको हीट किया बेटा, तो क्या बन जाएगा? H2O वेपर। अब इसमें कौन सी एक प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है? टेम्परेचर। दूसरी प्रॉपर्टी वॉल्यूम की चेंज होने वाली है। और जब ये वेपर फॉर्म में आएगा तो इसका प्रेशर कुछ अलग रहेगा और लिक्विड का प्रेशर कुछ अलग होता है। तो आप एक प्रॉपर्टी सिर्फ टेम्परेचर को बदल रहे थे, एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को चेंज किया तो उसका स्टेट बदल जाता है। सही है? तो कहने की बात है कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम is very difficult to achieve. It is impossible to achieve. Difficult भी नहीं, it is next to impossible to achieve, because ये तीन इक्विलिब्रियम एक साथ रहने चाहिए, साइमल्टेनियसली दे शुड एग्जिस्ट, कि देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन टेम्परेचर थ्रू आउट। शुरू किया, खत्म किया, बीच में भी उसका टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। डन, टेम्परेचर फिक्स हो गया, कहीं भी इनिशियल फाइनल आप जा रहे हैं, टेम्परेचर फिक्स हो गया। दूसरा, केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी उसका केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, नो प्रेशर ऑन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के आउटसाइड भी प्रेशर चेंज नहीं, विद इन सिस्टम भी प्रेशर में चेंज नहीं होना। ऐसे तीनों इक्विलिब्रियम जब एग्जिस्ट करेंगे तब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब एक और हम नया टर्म यहाँ समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोसेस? व्हाट डू यू मीन बाय a process? Process means what? A process means what? सिंपल तरीके से समझाएंगे, आपका आंसर एक्सपेक्टेड है। चुपचाप बैठना नहीं है क्लास में, अपना वीडियो ऑन किया और चुपचाप प्रवचन सुन रहे हैं, मुझे ऐसे क्लास नहीं चाहिए। चलिए, अब व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोसेस? आप इतनी सारी प्रोसेस डेली लाइफ में देखते हैं, करते हैं, तो ये प्रोसेस मीन्स व्हाट? हेलो, एनीवन? कोई भी नहीं बोल रहा है कुछ? आउट ऑफ 28 स्टूडेंट्स नो वन इज सेइंग। कपिल, क्या होगा बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? प्रोसेस मीन्स व्हाट? सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कौन बोल रहा है ये? नाम बोल दो जरा। वीना बोरीकर, वेरी गुड बेटा। हाँ हाँ, मैंने देख लिया अभी यहाँ पर, वो स्क्रीन को मैंने मूव किया था तो आपका नाम लिया। फिर से बोल दे बेटा, वेरी वेरी गुड। ये बाकी लोग सब सो रहे हैं, आरती, अदिति, आदित्य, अनमोल, अंश, आर्या। Yes, when a system changes from
वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यही तो लिखा अभी मैंने, स्टेट ए टू स्टेट बी, व्हेन अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम स्टेट वन स्टेट टू अनदर स्टेट is what we call as a process. यानी प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं हम? इट इज अ काइंड ऑफ ऑपरेशंस वी आर कैरिंग आउट. ये मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन मींस टू परफॉर्म, है ना? तो ये to perform an experiment. yes, to perform an experiment is an operation. तो process is an operation by which the state of a system changes from one to the other part, है ना? स्टेट ए को स्टेट बी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस, जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं उसे कहेंगे प्रोसेस. सो फिर से एक बार, व्हाट इज अ प्रोसेस? इट इज अ ट्रांजिशन, ऐसा भी बोल सकते हैं. यहाँ पर एक और वर्ड यूज कर सकते हैं जो हमें हेल्प करेगा समझने में, जैसे ऑपरेशंस है, ट्रांजिशन है, या पाथवेज भी हम बोल सकते हैं. वेरियस Sir, it's a पाथवेज. series of changes taking place. इट इज अ सीरीज ऑफ, Series of changes taking place. yes, series of changes taking place. very good. देखिए, series of changes taking place. तो बात करने से टेकिंग प्लेस, है ना? देखिए हमारे पास में कितने सारे ऑप्शंस आ गए. ऑपरेशन वन, ट्रांजिशन अनदर, pathways followed, series of changes taking place. When all these are carried out, we can say a process is going on, a process takes place. तो सिंपल तरीके से the change of state from one state, the change from one state to another state is what we call as a process. The pathways which we follow to convert state A to state B, the transitions taking place from state 1 to state 2 is known as a process. A series of changes taking place to convert state 1 to state B, है ना? Series of changes taking place to convert state 1 to state B2 is known as process. very good. चलिए, प्रोसेस आ गया. अब ये सीरीज ऑफ चेंजेस यानी क्या करना पड़ता है अपने को? क्या करना पड़ता है हमें? अभी मैं यहीं पर ही उसी को एक्सप्लेन कर रहा था. व्हाट वी हैव टू डू in order to carry out a process? Change one or more, change one or more state functions or thermodynamic function. Change one or more By changing the temperature. yes, pressure. state function यानी टेम्परेचर को चेंज कर दो आप, तो आपको स्टेट बदल जाएगा. मैंने कहा ना अभी, जैसे वाटर लिक्विड है, हीट किया आपने, सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया तो उसका स्टेट बदल गया, स्टेट बी में चला गया, वेपर फेज में आ गया. अब आप उसी वेपर को कंडेंस करो तो फिर से लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड को और कंडेंस करो आप तो वो सॉलिड आइस में आ जाएगा. तो स्टेट ए से स्टेट बी जा रहा है, बी से फिर वो सी में जा रहा है, जस्ट बाय चेंजिंग वन thermodynamic state function and that is temperature. तो प्रोसेस में हम करते क्या है? we change one or more state functions to bring about the change in state. सही है? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रोसेस. अरे बहुत सिंपल है ना प्रोसेस. आप घर में अगर कुछ काम करते हैं, जैसे अभी किचन में आप चाय बनाने चले गए, तो वो भी एक प्रोसेस है. आप किचन में काम कर रहे हो, वो भी एक प्रोसेस है. आप अपने व्हीकल को क्लीन कर रहे हैं तो वो भी एक प्रोसेस है. वहाँ आप कोई तो भी एक थर्मोडायनामिक फंक्शन को चेंज करते हैं, एक या एक से ज्यादा थर्मोडायनामिक
फंक्शन को चेंज करो तो वो प्रोसेस में आ जाता है। जैसे मैंने अभी इरेज किया, तो ये इरेज करने में मुझे प्रेशर अप्लाई करना पड़ा, है ना। जब तक अगर मैं ऐसा ही धीरे धीरे करूंगा तो ये इरेज नहीं होगा। आई हैव टू पुट सम अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द बोर्ड, है ना, थ्रू दिस नैपकिन। तो ये जब हम इससे प्रेशर अप्लाई करेंगे, देन ओनली द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग विल बी ओवर। प्रेशर, अब इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर भी नोटिसेबल चेंज नहीं हुआ, हाँ सिर्फ प्रेशर हमने अप्लाई किया एंड दिस बोर्ड गेट क्लीन। तो ये भी एक प्रोसेस हो गया। तो टू ब्रिंग अबाउट or to carry out a process, we need to change one or more thermodynamic functions. correct है। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग पार्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस की डेफिनेशन देख लिया बेटा हमने, है ना, प्रोसेस की डेफिनेशन देख लिया हमने। अब टाइप्स ऑफ प्रोसेस देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, उसमें फर्स्ट टाइप है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, वैसे तो 6 टाइप्स ऑफ प्रोसेस अभी हमको पढ़ना है। एक लिस्ट बना लूं छोटी सी यहां पर। तो एक है आइसोथर्मल प्रोसेस जो हमने लिख लिया। दूसरा है आइसोबैरिक प्रोसेस। थर्ड है आइसोकोरिक प्रोसेस। फोर्थ है एडियाबैटिक प्रोसेस। फिफ्थ है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड सिक्स्थ इज इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल हम पढ़ रहे हैं। अब इसका नाम इसी से समझ में आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल? आइसो मीन्स सेम, ये अभी हम यूज और करने वाले हैं ना। आइसो मीन्स सेम, और थर्मल यानी, हेलो, थर्मल यानी टेम्परेचर, है ना। तो आइसोथर्मल मीन्स व्हाट, कि a process which is having same temperature throughout is known as isothermal process. तो point number 1, constant temperature. yes, a process which is carried out at constant temperature is known as isothermal process. Constant temperature यानी initial temperature T1 is equal to final temperature T2, और throughout the process temperature change नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि initial देखा temperature वही है, final देखा दोनों का temperature वही है। No, initial final तो same है, in between temperature should remain constant। और change in temperature कैसा denote करते हैं बेटा? डेल्टा साइन से, डेल्टा टी। डेल्टा टी is change in temperature which is equal to, change in temperature कैसे नोट डाउन करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो T1 क्या है इसका? ये इनिशियल टेम्परेचर है। Initial temperature. T2 क्या है? ये फाइनल टेम्परेचर है। तो मुझे चेंज इन टेम्परेचर नोट डाउन करना है, तो हम क्या करेंगे? डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, Final minus दैट इज initial. T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 का आंसर क्या होगा? देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 आएगा ना ये? डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 क्योंकि Yes, sir. T1 इज इक्वल टू T2, दोनों इक्वल है बेटा। तो नेचुरली चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो Zero. आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। दैट मीन्स द चेंज इन टेम्परेचर
always remains 0. Done. अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्लोज्ड सिस्टम में ही होना चाहिए, है ना? क्लोज सिस्टम में होना चाहिए. ओपन सिस्टम में रखा तो टेम्परेचर तो एटमॉस्फेयर में इफेक्ट होगा, तो एटमॉस्फेयर विल अफेक्ट द टेम्परेचर. तो नेचुरली आइसोथर्मल प्रोसेस must be carried out in a closed system. Closed system, what do you mean by closed system? Hello? What do you mean by closed system? Which exchanges only... Which exchanges only energy. Correct, Anirudh. Which exchanges only energy with the surrounding. No matter will be exchanged, but only energy will be exchanged with the surrounding. अब only energy will exchange with the surrounding. That means what happens to this system can, अब देखिए system can exchange, देखिए interesting part, system can exchange thermal energy with surrounding. ये सेंटेंस को समझो जरा और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम कैन एक्सचेंज थर्मल एनर्जी विद सराउंडिंग. देखिए ना, अगर थर्मल एनर्जी सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं करेंगे बेटा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा? आपको विंटर में ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, ब्लैंकेट ले लेते हैं. वी ट्राई टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर. हमारा सिस्टम भी एक आइसोथर्मल है ना? जब हमें हीट एनर्जी बॉडी में बढ़ती है तो पर्स्पिरेशन आता है, पर्स्पिरेशन से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है ना? तो पर्स्पिरेशन, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखो, और एक इम्पॉर्टेंट आगे डिस्कस करूँगा मैं. तो जब बॉडी में, जब आप वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कोई हैवी वर्क करते हैं, तो क्या होता है? बॉडी में हीट एनर्जी बढ़ती है, आपको पर्स्पिरेशन आता है ना? और पर्स्पिरेशन आ गया यानी पसीना अगर आ गया तो इट इज गुड और इट इज बैड? हेलो, it is good. It is good. Everyone agree to this? Yes, it is good because that perspiration helps to regulate the body temperature, so that this should remain as an isothermal system, है ना? तो पर्स्पिरेशन से यंग जनरेशन, पर्स्पिरेशन से घबराना नहीं और पर्स्पिरेशन को हेट नहीं करना, एंड डोंट लुक डाउन ऑन पर्स्पिरेशन. मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो एड में दिखाता है आजकल, पसीना आ गया, अच्छी बेकार गंदा. नो, पर्स्पिरेशन इज अ ह्यूमन बॉडी mechanism to regulate the body temperature. Perspiration आ रहा है यानी your system is working very fine. तो पर्स्पिरेशन को रोकने के लिए कुछ डियो और कुछ परफ्यूम या कुछ तो भी आप लगाएंगे नहीं, है ना? let the body get perspire. वो जितना पर्स्पिरेशन होगा उतना वो आपको कूलिंग में फायदा देगा. तो बस ये एक बोलना था. कमिंग बैक टू द आइसोथर्मल प्रोसेस. क्या है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट. इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. और ये वाली प्रोसेस हमेशा क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम में ही रहेगी. और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब समझा क्या आपको? सिस्टम कैन एक्सचेंज थर्मल एनर्जी विथ सराउंडिंग.
अब इसको और एक एग्जांपल से जो आपको बहुत इजीली समझ जाएगा, जैसे एक रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है यानी हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है, और ये हीट एनर्जी को अगर सराउंडिंग में जाने नहीं देंगे हम तो क्या होगा कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। सही है ना? इतना तो हमें समझता ही है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन Yes, है, sir. लेट द हीट विच इज लिबरेटिंग गो टू द सराउंडिंग। अगर हमने इसको रोक दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और एक वक्त आएगा कि ये ब्लास्ट हो जाएगा। वोल्केनोज में क्या होता है, इरप्शन। वोल्केनो इरप्शन क्यों होता है, अंदर ही अंदर है ना, अर्थ में अंदर ही बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती रहती है और उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है, उसको निकलने की जगह नहीं मिलती है, और जहां से जगह मिली वहां से फिर वोल्केनो इरप्ट होता है और इतना सारा लावा निकलता है ना? तो क्यों आ रहा है, क्योंकि सिस्टम चाहती है कि सिस्टम कौन सी रहे, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इट एक्सचेंजेस थर्मल एनर्जी विथ सराउंडिंग। एक्सोथर्मिक रिएक्शन liberate energy to surrounding. What happens to endothermic? हाँ जी बोलिए जल्दी से। एंडोथर्मिक में क्या होगा, endothermic will absorb energy from surrounding so that its temperature should remain constant. तो हमारी बॉडी में विंटर में हम वार्म क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, है ना? आउटसाइड का जो वेदर जो है अगर वो ठंडा है उससे बचने के लिए हम, Sir, है 10 ना? minutes are left. ओके, बहुत है समय तो अभी हमारे पास में। तो ये हाँ बेटा, ये क्या हो गया, समझा क्या? ये फोर्थ वाला पॉइंट, सिस्टम कैन एक्सचेंज Yes, sir. थर्मल एनर्जी विथ सराउंडिंग। अच्छा, थर्मल एनर्जी विथ सराउंडिंग व्हेन इट विल एक्सचेंजिंग, तो व्हाट विल हैपन टू इट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी ये भी कांस्टेंट ही रहेगी। डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। जब टेम्परेचर ही नहीं बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ेगी? जब टेम्परेचर ही कम नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होने का चांस ही नहीं है। टेम्परेचर, internal energy is a function of temperature. What I am saying, internal energy is a function of temperature. अब मैंने टेम्परेचर को ही कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर को ही कांस्टेंट कर दिया तो नेचुरली इंटरनल एनर्जी ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी फिर फ्लक्चुएट होते जाएगी, because internal energy is a function of temperature. तो याद रखेंगे, डेल्टा T is equal to 0 as well as delta U is equal to 0. And what will happen to the pressure and volume? Pressure and volume, does they will also remain constant or they will change? Come on, quick answer. Change. Sir, change. Change, Yes, sir. change, change, Change. change. Yes, pressure and volume will change. Very good. चेंज होगा ना बेटा। एक्सोथर्मिक, जैसे मैंने अभी आपको वोल्केनो इरप्शन बताया, तो वोल्केनो इरप्शन में क्या होता है, जो प्रेशर बढ़ते जाता है वो अर्थ की सरफेस को ब्लास्ट कर देता है ना? तो प्रेशर चेंज होता है, उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। जहाँ वोल्केनो जहाँ रहेगा उधर गड्ढा बन जाएगा एक, तो उसका वॉल्यूम भी बदल जाएगा। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम विल चेंज बट इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट,
because temperature remains constant. Okay, an important point, system can exchange thermal energy with its surrounding to maintain constant temperature, to maintain constant temperature. सही है, to maintain constant temperature. So this is what the process is about, and the first process is isothermal process. अब दूसरी प्रोसेस देखते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक है ना, बारीक नहीं बोलने का, आइसोबारिक नहीं है वो, आइसोबैरिक. आइसोबैरिक प्रोसेस, हाँ जी. आइसोबैरिक प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोबैरिक? Isobaric process, pressure remains constant. Veena Borikar, very good. Iso means same, है ना, same. और baric यानी बार प्रेशर बोलते हैं ना, 1 bar pressure, 2 bar pressure. तो isobaric means same pressure throughout. Same pressure remains constant throughout. When the pressure remains constant throughout, means P1 is equal to P2 or delta P is equal to 0. Easy है, delta P is equal to 0 because there is no change in pressure. Done? Now, अब isobaric process में pressure remains constant. जैसे अब इसका एग्जाम्पल समझना एकदम इजी. हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वी से 1 atm ऑफ प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज अ कांस्टेंट. आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो ओपन वेसल या ओपन टेस्ट ट्यूब में है. ओपन वेसल या ओपन टेस्ट ट्यूब में जो भी रिएक्शन आप कैरी आउट करते हैं वो आइसोबैरिक होगी. आइसोबैरिक होगी क्योंकि उसका प्रेशर कांस्टेंट है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और एक सिंपल सा एग्जांपल, आप मिल्क है, एक ओपन कंटेनर में मिल्क को बॉईल कर रहे हैं, तो उस वक्त उस मिल्क को बॉईल करना हमारे लिए थर्मोडायनामिक सिस्टम. बॉइलिंग ऑफ मिल्क इज ए थर्मोडायनामिक सिस्टम. डन. अब इसका प्रेशर कांस्टेंट क्योंकि ओपन वेसल में है, तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही उस पे काम करेगा. अब आपने उस वेसल को क्लोज कर दिया तो क्या कांस्टेंट प्रेशर रहेगा? क्या नहीं. अब उस वेसल का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अलग हो जाएगा बिकॉज यू हैव क्लोज द वेसल. और इसीलिए क्लोज्ड वेसल को हम बोलते हैं अंडर रिड्यूस प्रेशर. आ रहा है बेटा ध्यान में? तो आइसोबैरिक प्रोसेस मीन्स अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर. इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर. और जो भी केमिकल रिएक्शन, जो भी प्रोसेस हम ओपन वेसल या ओपन कंटेनर में करते हैं वो हमेशा आइसोबैरिक होता है और उसका प्रेशर हमारा 1 atm प्रेशर यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हाँ बेटा, इसको लिखते हैं एक एग्जाम्पल में. रिएक्शन कैरीड आउट in open test tube or container has constant atmospheric pressure. सही है, constant
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये है हमारे लिए आइसोबैरिक प्रोसेस। नाउ व्हाट विल हैपन टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम? Will they change with pressure or they will remain constant? Volume and temperature. In this process, volume and temperature will They change will change. or will constant. Change होगा ना? Temperature and volume will change definitely, क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, जैसे एक यस चेंज वीना ने लिखा है ना? तो क्या हो रहा है, जैसे एक कंटेनर में आपने गैस फिल किया और उसका प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हो, है ना? जो उसका एक जैसे है ना एक्सपेरिमेंट होता है कि ये कंटेनर लिया, उस पे ये पिस्टन लगा दिया और यहाँ पर ये गैस एनक्लोज्ड है। अब आपने इसका प्रेशर बढ़ाते गए तो क्या होगा, गैस का जो वॉल्यूम है, गैस का जो वॉल्यूम है, खत्म होगी क्लास।